Hello children, how are you all? I hope you all are doing well. So children, today in this class we are going to learn about introductions to graph beta. So let's start with that. So सबसे पहले है introductions. Graphs are used to represent the numerical data in the usual form so that it can easily be understood. So thus graphs are also defined as the visual representations of data beta. So now linear graphs. Sometimes a graph is in the form of a broken line. So a line graph consists of a bits of a line segment joined consecutively. So we have studied about the coordinate systems where we have locate the points in a plane as shown below. Like this one. So 0, 1, 2, 3, here it is a positive and here it is a negative sign. So on a graph paper, draw two manually perpendicular lines हमारी x1 OX and YO Y1 intersecting each other at point O. Like this one. इस तरीके से हम ग्राफ में बनाएंगे. ये हमारी x है, ये x1, ये y, ये y1 बेटा. So we can say that these lines are known as coordinate axes. Line x OX is called x-axis and line YOY is called y-axis. Point O is called a point of origins. The plane of the paper in which these coordinate axes are drawn is called क्या? Cartesian's plane बेटा. So like these are ये हमें ग्राफ गिवन है. So 1, 2, 3, 4 पॉजिटिव में आएंगे, यहाँ हमारे नेगेटिव में हैं, यहाँ हमारे पॉजिटिव्स हैं 1, 2, 3, 4 और ये हमारे नेगेटिव में. और येस डू रिमेंबर ये हमारा फर्स्ट माना जाता है, दिस इज सेकंड, ये होता है हमारा थर्ड और ये हमारा होता है फोर्थ बेटा. सो द टू एक्सिस डिवाइड द Cartesian planes into a 4 parts. Each part is referred as a quadrant. So each quadrant is numbered as 1, 2, 3 and 4 in the anti-clock directions like this one beta. 1 here 2 3 ये anti-clockwise चल रहा है. So we read them as a quadrant 1, quadrant 2, 3 and 4 beta. So sign starting from 0 on the right hand side of the y-axis, every end point of a square on the x-axis representing a positive integers. Yes. On the left hand sides of a y-axis, every end point of a square on a x-axis representing a negative integers. Above हमारा क्या होता है x-axis के every end point of a square on the y-axis represent वो positive होते हैं और यहाँ पर हमारे below में क्या होते हैं negative बेटा. I hope you understood these things. So now ordered pair. Writing a pair of a numbers in a specified order is called a ordered pair. For examples, AB is a ordered pair with A at the first place and B at the second place. Now, coordinate of a point. Let P be any point on a graph paper. So, at a distance of a units from x-axis and a b units from y-axis. Then the coordinate of P are A or B like this one. ये हमारा बना. Here A is referred as x coordinate or abscissa of P beta, abscissa of P. So B is referred y coordinate or coordinate of P. So in the above figures coordinates of A हमारा A O है और B के हमारे coordinates क्या हैं O B beta. I hope you understood this thing. So now example 1. प्लॉट द फॉलोइंग पॉइंट्स ऑन अ ग्राफ पेपर. ग्राफ पेपर पे ये पॉइंट्स हमको क्या करने हैं प्लॉट करने हैं. सबसे पहले क्या है A 3 4. A पे प्लॉट करेंगे 3 4, B पे प्लॉट करना है 4 -4, C पे प्लॉट करेंगे -3 4 एंड सो ऑन. सो सॉल्यूशंस. सबसे पहले हम देखेंगे x OX पे YOY be the coordinate axis. So for A 3 or 4 on the x axis take 3 units to the right of y-axis and then on the y-axis take 4 units above the x-axis. For B के लिए हम क्या करेंगे 4 -4. So 4 -4 का मतलब होता है कि on the axis take a 4 units to the right of y-axis and then उसके बाद हम क्या करेंगे y-axis में लेंगे 4 units below the x-axis बेटा. Similarly
सी के लिए हम क्या करेंगे, सी पार्ट के लिए हमने करा है कि ऑन द एक्स एक्सेस टेक 3 यूनिट्स to the left of y axis and then on the y axis take 4 units above the x axis. Similarly D के लिए, E के लिए, F, G, H बेटा you just read and practice well like that. ये हमारे प्लॉटिंग के नंबर है, इस तरीके से हमने ये प्लॉट कर दिया. B हमारा ये एक पॉजिटिव है, एक माइनस में है, और हमारा C क्या है, ये नेगेटिव फर्स्ट में, ये x एक्सेस एंड ये 4, एंड D ये हमारा D हो गया, दोनों नेगेटिव नेगेटिव में, एंड दिस इज E, और ये हमारा क्या हो गया, यस ये पॉजिटिव, ये 5 का आ गया, और ये हमारा क्या आ गया, नेक्स्ट नंबर. सो दिस इज हाउ वी जस्ट प्लॉट दैट काइंड ऑफ थिंग्स बेटा, और दैट नंबर. आई होप यू अंडरस्टूड दिस ग्राफ. नाउ एक्सरसाइज 13.1. सो क्वेश्चन नंबर 1 है बेटा, प्लॉट द फॉलोइंग पॉइंट्स ऑन द ग्राफ पेपर. ग्राफ पेपर पे हम ये सारे पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे. जस्ट लाइक सबसे पहले हमारा ए गिवन है 2 और 3. सो लेट्स सी हम किस तरीके से करेंगे. आई एम जस्ट मेकिंग हेयर रफली डायग्राम ओवर देयर. आप इसको अच्छे तरीके से ग्राफ में करेंगे. सो अगर ये इस तरीके से है तो ये हम मान के चलते ये हमारा y गिवन है, ये आप इस तरीके से एरो मान के चलो, ये आपका x होता है, दिस इज़ x, दिस इज़ आपका क्या होता है, y होता है. तो ये जो हमारे नंबर होते हैं ये हमारा 0 है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हमारे पॉजिटिव के होते हैं. तो आपने इस तरीके से पॉजिटिव में लिखना है, 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन. एंड हेयर इट इज़, ये हमारे कितने होते हैं, -1 पे. सो -1, हेयर इट इज़ 1, ये पॉजिटिव 1, एंड हेयर इट इज़ 2, ये 2 3 4 5 6. सो ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये हो गया 6. तो x और y, x के जो इस तरफ जो होते हैं ये हमारे नेगेटिव के होते हैं, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7. सो जस्ट राइट इट, -1 -2 -3 -4 -5 -6 एंड -7 एंड सो ऑन. बेटा जो भी आपके नंबर गिवन है ये हमारे पॉजिटिव में है तो नीचे क्या हो जाएंगे, यस ये हमारे नेगेटिव में हो जाएंगे. सो ये हमारा हो गया -2 -1, हेयर इट इज़ -3, ये हो गया -4, ये नंबर हो गया -5 एंड सो ऑन. अब हमने प्लॉट करना है सबसे पहले a हमारा कितना है, 2 और 3. सो a हमारा ये हो गया 2, दिस इज़ 2, और ये हमारा हो गया 3. तो ये 2 हमारा सबसे पहले और ये 3, तो यहाँ कहीं ये नंबर हमारा प्लॉट होगा. तो आप लिख दोगे इसको a कितना आ गया, 2 एंड 3 बेटा. सिमिलरली बी में क्या गिवन है, 3 और -2. सो 3 आपका ये है और -2 आपका ये है, तो यहाँ कहीं ये नंबर इस तरीके से प्लॉट होगा, बिल्कुल जस्ट इसके सामने यहाँ, और ये 3. तो आप लिख दोगे बी हमारा कितना बना, कितना, पहले पॉजिटिव का है 3 और ये कितना बना, -2 बेटा. सो दिस इज़ हाउ वी जस्ट प्लॉट दैट नंबर बेटा. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. सो नाउ हम these are the beta other questions, you have to complete it yourselves, it's very easy. So now next topic, this is, ये हमारा क्या given है, it's a given like graph of perimeter versus length of a square beta. So we know that perimeter of a square का formula क्या होता है, 4 into side of a square. So let P is equal to 4a, that means where P is the perimeter of a square and a क्या हो गया, उसकी side हो गई हमारी. So draw a graph for the above relations. So from the above graph find the value of P when A मतलब जो side है उसकी 2 है और A हमारा 6 गिवन है. So let's see the solutions. Given function है हमारा P is equal to 4A, ये हमें given है. So for different values of A then corresponding value of P are given. Like P हमें 4A given है, so that means ये हमारा कितना हो गया, 0 एंड 4 1 ज़ा 4, ये 4 आ गया, 4 2 ज़ा 8, ये 8 आया, 4 3 ज़ा 12 एंड 16 एंड 20 बेटा. सो नाउ प्लॉट द पॉइंट्स. 0 हमारा 0 0 हो गया. ए वाले पे हम प्लॉट करेंगे 1 एंड 4 क्योंकि ये 1 एंड 4 है, एंड बी पे प्लॉट करेंगे 2 और 8. सी पे प्लॉट करना होगा हमें 3 और 12. डी में हम प्लॉट करेंगे 4 एंड 16, और ई में हम प्लॉट करेंगे 5 एंड 20 ऑन द ग्राफ पेपर. सो जॉइन देम सक्सेसिवली टू ऑब्टेन द रिक्वायर्ड ग्राफ लाइक दिस वन बेटा. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. तो ये स्केल हमें गिवन है, किस तरीके से
scale along x-axis take 1 centimeter 1 unit, along y-axis take 1 centimeter 2 units. मतलब लाइक इसमें 1 2 3 4 5 कंटिन्यूसली गिवन है हमें, और यहाँ पर हमें कितना 2 2 का गैप है, सो 2 4 6 8, सो तभी हमारा ये ग्राफ पेपर बनेगा अगर हम इसका 2 2 का स्केल लेंगे अच्छे तरीके से. तो ये हमारा 1 हो गया पॉइंट, ये हमारा बी पे पॉइंटिंग कर दी, यहाँ पर 3 सी पे प्लॉटिंग कर दी, एंड सो ऑन. I hope you understood this answer. So now next beta. Reading off from the graph. So on the x-axis take the point L at A is equal to 2. Draw LB x-axis पे meeting the graph at B. So clearly BL is equal to 8 units. So therefore P हमारा कितना निकला 20 beta. So on the x-axis take the point M at A is equal to 6. Draw हमारा एम एफ करेंगे एक्स एक्सेस से, सो मीटिंग द ग्राफ एट एफ, एम एफ इज इक्वल टू 24 यूनिट्स, सो देयरफॉर पी हमारा कितना निकला 24 बेटा. होप यू अंडरस्टूड दिस थिंग. सो नाउ ग्राफ ऑफ एरिया एज अ फंक्शन ऑफ साइड ऑफ अ स्क्वायर. सो वी नो दैट एरिया ऑफ अ स्क्वायर कितना होता है, हमें पता है साइड इंटू साइड, साइड स्क्वायर. सो लेट ए इज इक्वल टू हमारा क्या है एक्स स्क्वायर. So where A is the area of a square and X is the side of a square. So draw a graph for the above functions. From the above graph find the value of a when X हमारा कितना है is equal to 5. So solution है given function A is equal to X square. So for different values of X the corresponding value of A are given below like this one. हमारा ये कितना निकलेगा 1 एंड हेयर इट इज़ 2, 2 का 4 बन गया 3, 3 ज़ा 9 एंड 4 4 ज़ा 16, क्योंकि ये हमारा स्क्वायर में गिवन है. सो नाउ प्लॉट द पॉइंट्स. 0 में 0 0 प्लॉट करेंगे, ए में 1 1 को प्लॉट, बी में 2 और 4, एंड फिर हमारा आ जाएगा 3 एंड 9 प्लॉट, एंड डी में हमारा हो जाएगा 4 एंड 16 की प्लॉटिंग बेटा. फिर आप उसको क्या करोगे ज्वाइन कर दोगे. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. सो नाउ ये हमें स्केल है, अलॉन्ग एक्स एक्सेस टेक 1 सेंटीमीटर 1 यूनिट लेंगे, और वाई एक्सेस पे हम 2 यूनिट्स लेंगे, लाइक 2 4 6 8 ये 2 यूनिट्स हैं, और यहाँ पर हमारा 1 2 3 4 इस तरीके से यूनिट्स गिवन है. सो ए पे हमारी प्लॉटिंग हो गई 1 1 की, बी पे प्लॉटिंग 2 4 की, सी पे प्लॉटिंग 3 9 की, और इस तरीके से ये हमारा ये ग्राफ शो हो गया. आई होप यू अंडरस्टूड दिस ग्राफ वेरी नाइसली. सो नाउ नेक्स्ट. Reading off from the graph. On the x-axis take point L at x is equal to 5. Draw LE x-axis and meeting the given graph at E. Clearly EL हमारा हो गया 25 units. So therefore A हमारा कितना हो गया 25 units. So in the above graph, a linear graph, we observe that this graph is not a straight line, but it's a curved line, so it is not a linear graph beta. Hope you understood this thing. So now graph of multiples of a different numbers. One is draw a graph of a functions y is equal to 3x. From the graph find the value of y when x is equal to 3 है, और x हमारा सेकेंड में क्या गिवन है -4. सॉल्यूशंस कैसे करेंगे, सबसे पहले y is equal to 3x, मतलब कि for different value of x the corresponding value of y are given below. y हमारा इक्वल है 3x में, तो 4 3 ज़ा 12 प्लस माइनस माइनस ये -12 बन गया, 3 3 ज़ा 9 -9, 3 2 ज़ा 6 -6, 3 1 ज़ा 3, 0 का 0 ही रहेगा, एंड 1 3 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, और ये हमारा आ गया 12 बेटा. सो इसी हिसाब से हम प्लॉटिंग कर देंगे. ए पे प्लॉटिंग क्या करेंगे -4 -12 की, लाइक ये वाली प्लॉटिंग है, फिर ये बी की प्लॉटिंग, देन सी की प्लॉटिंग, डी की, एंड सो ऑन बेटा. फिर इस तरीके से आपको रिक्वायर्ड ग्राफ मिलेगा. सो ये है इसका एग्जाम्पल. जिस तरह से हमने क्या लिखा है, ये हमारा एक्स एक्सेस है, वाई एक्सेस पे है, और ये इस तरीके से इसकी प्लॉटिंग करेंगे, एंड दिस इज़ हाउ वी जस्ट डू दैट वन. आई होप यू अंडरस्टूड. जस्ट प्रैक्टिस इट बेटा. नाउ rounding off from the graph. So on the x-axis take the point L at x is equal to 3.
ड्रॉ एल जी एक्स एक्सेस मीटिंग द ग्राफ एट जी, क्लियरली जी एल हमारा कितना हो गया 9, सो देयर फॉर वाई इज इक्वल टू -9. सो नेक्स्ट इज ऑन द एक्स एक्सेस टेक द पॉइंट m, हम लेंगे m एट x इज इक्वल टू -4, ड्रॉ एम ए एक्सेस मीटिंग द ग्राफ एट a, क्लियरली m है हमारा हो गया -12, सो y की वैल्यू कितनी आ गई हमारी बेटा -12. होप यू अंडरस्टूड दिस थिंग्स. सो next topic, graph of simple interest versus number of years. So let's start. Simple interest on a certain sum is 20 per year बेटा. So ये हो गया हमारा. So अब हम क्या करेंगे, that means 20 into x हमारा s हो गया, where s is the simple interest and x हमारा क्या हो गया number of years की, total number of years कितने हैं. So draw a graph for the above functions. From the above graph, find the value of s. That means x हमारा कितना हो गया 5 बेटा. So solutions है, हमारा function है s is equal to 20x. That means for different value of x, the corresponding value of s are given below. 20 1 जा 20, 20 को 2 से मल्टीप्लाई करा 40, 60 एंड 24 जा 80. सो नाउ प्लॉटिंग करेंगे हम पॉइंट्स की. ए का जो हमारा प्लॉट आएगा 1 और 20 पे दोनों पॉजिटिव है. बी पे हमारा कितना आ जाएगा 2 और 40, इट्स अगेन पॉजिटिव. सी की हमारा प्लॉटिंग होगा 360 एंड डी का 480 बेटा. सो नाउ लेट्स सी इट. दिस इज हाउ, इस तरीके से हम करेंगे. ये हमने नंबर दे दिया 10, 20, 30, 40 एंड 1, 2, 3, 4. ये हमारा ए की प्लॉटिंग, बी की प्लॉटिंग, सी की प्लॉटिंग एंड डी की प्लॉटिंग. And this is E plotting beta. I hope you understood this thing. Now reading off from the graph. On the x-axis take the point L at x is equal to 5. Draw करेंगे हम LE x-axis पे meeting the graph at E. Clearly EL हमारा हो गया 100 units. That means S हमारा कितना आ गया 100 बेटा. Hope you understood these things. So now next. This is reading of distance versus time graph. So as we know, distance is directly proportional to time. So as the distance increases, time also increase. भाई जब हमारी दूरी बढ़ेगी तो टाइम भी उतना ही हमारा बढ़ेगा and vice versa. So let's suppose a car travels at a speed of 50 km per hour. Then the distance traveled be d into x hours. So ये हमारा डिस्टेंस कितना हो गया 50 इंटू एक्स, लाइक दिस वन. टेकिंग डी एंड एक्स बी आर 2 वेरिएबल्स, वी कैन ड्रॉ ग्राफ्स रिप्रेजेंटिंग द अबव रिलेशंस बिटवीन डिस्टेंस एंड टाइम. सो एक्स की हमें ये गिवन है, डी हमारा कितना है 15x, दैट मीन्स 15 1 = 15, दिस इज 100, 15 3 = 150 एंड 54 = 20. सो फॉर ग्राफ के लिए हम सबसे पहले स्केल क्या लेंगे, हम लेंगे अलॉन्ग एक्सेस पे टेक 1 सेंटीमीटर 1 यूनिट, और वाई एक्सेस में लेंगे हम 50 यूनिट्स, जो 1 सेंटीमीटर वो 50 यूनिट्स. सो ये डिस्टेंस आ गया हमारा 50, 100, 150 किलोमीटर, 200 किलोमीटर एंड सो ऑन. ये हमारा आ गया टाइम बेटा. सो 1 आवर, 2 आवर, 3 एंड सो ऑन. सो हमारा ये प्लॉटिंग हो गई. सबसे पहले 150, 2 हमारा निकला था कितना 200, और ये हमारा 3, यहाँ से हमने 3 पे लिया और यहाँ से 150 आया, ये बन गया 350. एंड दिस इज़ 5 में हमारा क्या आया, यहाँ से हमारा पहले आ गया ये x में ये जो टाइम है, और फिर ये हमारा डिस्टेंस हो गया 5 to 50 एंड सो ऑन. आई होप यू अंडरस्टूड दिस ग्राफ. सो read the above graph carefully, answer the following questions, find the distance covered in a 5 hours and find the time taken for the distance of 300 kilometer. So let's see the solutions of that one. सबसे पहले it's clear from the above graph distance covered 5 hours में कितना हो गया, it's understood 1 में 50 है तो 5 में कितना हो गया, मल्टीप्लाई करेंगे, so 250 किलोमीटर. टाइम टेकन कितना लगा फॉर द डिस्टेंस ऑफ 300 किलोमीटर, दैट मीन्स 6 hours beta. I hope you understood this one. So now exercise 13.2. Here it is given, draw the graph for the functions p is equal to 4x. So अब हमारा p is equal to 4x दे रखा है. Let's see how to solve this one. First question. So
इफ़ आई जस्ट टेक इट x और ये हमारा कितना है, आप इस तरीके से ले होगे यहाँ पर, आई एम जस्ट मेकिंग हेयर रफली बेटा, ये हमें p की वैल्यू कितनी देर की है 4x। तो अगर ये हमारा -3 है, ये हमारा नेगेटिव में है -2, हम यहाँ पर कितने भी 1 ले सकते हैं नंबर, मैं जस्ट रफली यहाँ पर कुछ एक ले रही हूँ, 1 यहाँ पर 2 ले लिया एंड 3 ले लिया। सो 4 3 कितने होते हैं 12, तो ये -3 और -12 की प्लॉटिंग करेंगे हम। 4 2 8 माइनस की -2 और 8 ये प्लॉटिंग हो गई। 4 1 4 ये -0 का 0, 4 1 4, 4 2 8 एंड 4 3 12। सो इस तरीके से हमने प्लॉटिंग करनी है। तो अभी हमने ग्राफ सीखा, हम ग्राफ कैसे बनाते हैं, इस तरीके से। ये हमारा हो गया x, ये हमारा कितना हो गया p जो कि y भी है हमारा, ये हमारा x हो गया और ये हमारा हो गया p जो y है। तो ये हमारे बेटा क्या होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ कितने हो जाते हैं, ये सारे हमारे वैल्यूज़ हो जाती है माइनस में, -1 -2 -3 -4 -5 एंड सो ऑन। ये हमारे होते हैं पॉजिटिव में 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ये हमारे कितने हो गए माइनस में, -1 -2 -3 -4 -5 एंड सो ऑन। अब हमने प्लॉटिंग किसकी करनी है, सबसे पहले पॉजिटिव की लेते हैं 1 और 4 की। तो ये हमारा हो गया 1 और यहाँ से हमारा हो गया ये 4। तो यहाँ पर कहीं आप ये आपकी प्लॉटिंग हो जाएगी, इसको अगर आप a मान के चलोगे तो ये हो गया 1 एंड 4। फिर आपका हो गया, अगर आप ये माइनस का एक लेके चलते हो तो -1 और -4, b का है ये 2 और 8। सो 2 और 8 की प्लॉटिंग यहाँ कहीं हो जाएगी, तो ये हमारा बनेगा यहाँ से 2 और यहाँ से 8। तो ये आप इसको दे दो 2 और 8। इस तरीके से आप करोगे तो ये आपका एक इस तरीके से लाइन जाएगी बाहर, फिर आप 3 की 4 की माइनस की 1 पे यहाँ पर एंड सो ऑन बेटा। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। सो दिस इज़ हाउ वी हैव टू सॉल्व द अदर क्वेश्चंस बेटा। आई होप you understood these things. So now these are the beta other questions, you have to complete it yourselves. It's very easy, you only need to do practice for that one. So now next, this is क्या है हमारे कुछ पॉइंट्स से रिमेंबर करने के लिए। तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा, इन रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम द हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स ओ एक्स इज कॉल्ड एक्स एक्सिस, while the vertical line जो होती है y o y is called y axis बेटा। The point of intersections of the line x o x and y o y is called the origins. Hope you understood these things. Now हमने कौन सा points पढ़ा, the plane is divided by the axis into 4 regions, each being called quadrants. In first quadrant x is हमारा क्या है, yes positive and y is positive beta, O positive and y is positive. In second quadrant x is negative and y is positive, and third one में हमारा x negative होता है, y भी negative. Fourth quadrants में हमारा क्या होता है, x positive and y is negative. And graphical representations of data being usual input is easy to understand. The coordinates x y means we move x units to along x axis and then move y units along y axis. The graph of a different data can be drawn with the help of the coordinates. Graph help us in predicting different important results. The relations between dependent variables and independent variables can be represented by a graph. Like this one, ये हमारा क्या है x, x, y and y. So ये हमारा कितना है, yes, ये पॉजिटिव में और ये हमारा नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव एंड दिस इज सो ऑन बेटा। आई होप यू अंडरस्टूड दिस थिंग्स। सो नाउ बेटा नेक्स्ट, ये हमारे कुछ साइंस है, रीजन्स, क्वाड्रेंट्स एंड साइन ऑफ कोऑर्डिनेट्स मीन्स एक्स ओ वाई 1 क्वाड्रेंट्स में आएगा पॉजिटिव पॉजिटिव, वाई ओ एक्स सेकेंड में आएगा नेगेटिव पॉजिटिव, एक्स ओ वाई थर्ड में दैट मीन्स नेगेटिव नेगेटिव, वाई ओ एक्स फोर्थ क्वाड्रेंट्स में आएगा दैट मीन्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइंस। आई होप यू अंडरस्टूड। सो एब्सिस का इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस
Ordinate is the perpendicular distance of a point from x-axis. Abscissa is a positive on the right of y-axis. Abscissa is a negative on the left of y-axis. Abscissa of any point on the y-axis is always 0. Ordinate is a positive above x-axis. Ordinate is a negative below x-axis. Ordinate of any point on the x-axis is always 0 beta. And coordinates of origins are always 0, 0. So, I hope you understood all points very nicely. You only need to do beta practice. So, practice करिए और इस points को याद करो बेटा. So, with this we have ended up the chapter. I hope you understood well. So, do practice and do rest of these exercises by your own.